بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ اور خیریت سے ہیں آپ سب؟ چلیے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ تو کل ہم نے کیا کرا تھا؟ ہم نے کہا کیا کرا تھا ہم نے کل؟ ہم نے ہدایت کی بات ہو رہی تھی۔ چلیے تو ہدایت کی بات ہو رہی تھی کل۔ ہدایت ہم نے اللہ سے ہدایت مانگ رہے تھے ہم، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب آپ کی ہر وقت ہمیں آپ کی ہدایت چاہیے، ہر راستے میں ہمیں آپ کی ہدایت چاہیے، ہے نا؟ یہ بھی بتائیے ہمیں بالکل صحیح صحیح ڈائریکشن بھی بتائیے، اس راستے پر کیا کیا رکاوٹ آئیں گی یہ بھی بتائیے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ مستقل رہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ سوچئے کہ ہم صرف سورت فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں، ابھی اتنا دیکھ لیا ہم نے کہ قرآن کو ہم مطلب چینج نہیں کر سکتے، یہ بالکل آلریڈی پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک دم کمپلیٹ ہے۔ اور پھر چلیے اب آتے ہیں ہم کہاں پر؟ مستقیم پر، ٹھیک ہے؟ تو مستقیم کیا ہوتا ہے؟ مستقیم استقامہ سے بنا ہے، اور استقامہ کہتے ہیں قیام کرنے کو، کھڑے ہونے کو، اسٹریٹ بیلنس، ہے نا؟ تو یعنی مستقیم کہتے ہیں کہ وہ راستہ نہ ایسٹ میں جائے نہ ویسٹ میں جائے، نہ آگے نہ پیچھے، صرف کہاں جائے؟ صرف اوپر جائے، اونلی اپ، اوپر جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو کیا تو کہاں پہنچیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مستقیم کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کو، یعنی درجات جو ہیں وہ درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے چلے جائیں، یعنی درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے جیسے جیسے ہم اس راستے پر پہنچیں گے، ہے نا؟ رائزنگ اپ، درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ انسان مستقیم مطلب سیدھا جو اوپر تک جائے راستہ، اب اس راستے پر چل کر ہم بہت ساری مطلب ڈیفیکلٹیز بھی آ سکتی ہیں، جیسے کہ ہم پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ویسے ویسے مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے نا؟ اور زیادہ تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ میں نیچے نہ گر جاؤں، مجھے اور زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پر تھک جاؤں اور میں اوپر تک نہ چڑھ ہی نہ پاؤں، اس لیے میں سکون سے آگے تک بڑھتی چلی جاؤں گی۔ اور اس راستے میں جیسے جیسے پروگریس ہوتی جائے گی، درجات بلند ہوتے جائیں گے، آزمائش آتی جائیں گی، مشکلیں مستقل آتی جائیں گی، شیطان ہر روپ میں آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سکون کی زندگی ہو اور آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں آئے گی، نہیں۔ ہسٹری تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ساری مطلب ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی میں، جو اسلام لایا ہے اس کے ساتھ آزمائش ضرور آئی ہے، تو جیسے جیسے درجے بڑھتے جائیں گے بڑھتے ہم ہدایت کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارا تقویٰ جیسے درجے بڑھتے ہم جیسے جو ہے مطلب
हमारा तकवा जो है वो बढ़ता जा रहा है, सीधा सीधा हमारे दर्जे बुलंद होते चले जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए इस रास्ते पर जो चला उसको है ना, आप देखिए पहाड़, जैसे कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए, पहाड़ पर तो बहुत आगे का भी नजर आएगा, आएगा ना, और बहुत पीछे का भी नजर आएगा। यानी जो सिरातुल मुस्तकीम पर होगा ना, तो उसको कयामत तक का नजर आएगा, उसको पीछे बाबा आदम तक का नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम पर चला, तो इसको जो है जो इसको पहले नजर नहीं आती थी बातें, वो आपको इस रास्ते पर चलकर नजर आने लगेंगी। इसको कहते हैं मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। तो इहदीना, तू हिदायत दे हमें सिरातल मुस्तकीम, रास्ते की सीधे, जो के ऊपर तक जाए। अब आगे कौन सा रास्ता मांगा है हमने? सिरातल लजीना। अब इसमें देखिए कि सिरात 2 बार इस्तेमाल हुआ है ना कुरान में। कल मैंने आपको कोई चीज बताई थी ना, कि इतनाब, कुरान में इतनाब होते हैं, यानी एक ही लफ्ज को दोबारा अगर कहना पड़े, जबकि दोबारा कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन दोबारा कह दिया जाता है तो इसका कुछ खास मतलब होता है। जैसे यही दिन सिरातल मुस्तकीम, और दोबारा से आ गया सिरातल लजीना। ठीक है, तो सिरात 2 बार आ गया, तो यानी के 2 बार आने का मतलब क्या है, कि इसके बारे में हमें जो समझने की हिदायत दी वो कितनी चीजें, 2 चीजें। एक तो ये कि दूसरों के लिए जगह बनानी है इस रास्ते में, इसका मतलब है कि दूसरों के लिए दूसरा ये कि इस सड़क पर चलने के लिए अगर कामयाब होना है तो अपने से पीछे वालों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप ये समझें कि एक तो आप अकेले नहीं चल सकते, इस रास्ते पर साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, साथ में रहकर चलना है। जितना साथ में रहेंगे, मिलेंगे, मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आप आगे तक पहुंच जाएंगे, उतना ज्यादा आपके दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आप चलते चलते जाएंगे, मगर साथ में मिलकर चलने से, लेकिन आपको पीछे देखने की भी जरूरत है। ठीक है, तो अब कैसे, यहाँ पर क्या कहा? सिरातल लजीना, रास्ता, अल लजीना, उन लोगों का, अल लजीना क्या? उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, अनअमता जिस पर तूने इनाम किया, और अनअमता बना है अनअमा से, और अनअमा कहते हैं, क्या है ये अनअमा, कुछ याद है? मैं आपको अभी तो हम ये फेले माजी ही कर रहे हैं, तो क्या है ये अनअमा? शाबाश, हाँ ठीक है, माजी ही है ये। तो जिस अनअमा मतलब इनाम, जिस पर तेरा इनाम हुआ, है ना। यहाँ पर क्या है? अनअमता, अनअमता, याद है क्या है अनअमता? क्या है इसके मीनिंग? तूने इनाम दिया, सही। अ, अलैकुम, उन सब पर। अब देखिए अनअमता जो है, उसमें ये जो है नाम, नऊमा, नऊमा से बना है। उन सब पर आप देखिए अनअमता जो है, इसमें ये जो है अ, कहा, नऊमा से बना है, और इसके इसके रूट लेटर क्या है? नून एंड मीम। नऊमा कहते हैं सॉफ्टनेस, ठीक है, नरमी को, बिल्कुल जो नरमी होती है, कंफर्ट एकदम। और इसी से इनाम बना है, और इनाम कहते हैं कैटल। कैटल कौन होते हैं? मवेशी। मवेशी को कुरान में पढ़ेंगे आप, बार बार, बार बार आप इनाम, मवेशियों को, कैटल को, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्टली चलते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसी से ये बना है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं
कि इस रास्ते को मैंने बहुत आसान बनाया, इजी, बिल्कुल इजी बनाया लोगों के लिए, ठीक है। और इस रास्ते में जो है, हमें इस रास्ते में, और अल्लाह ताला ने खुद ये रास्ता पसंद किया है हमारे लिए, इसलिए इस रास्ते को आसान बनाया है। जैसे अल्लाह ताला ने अनअमता इनाम किया अलैहिम, उन पर, के, अच्छा देखिए, अला प्लस हिम, अलैहिम किससे बनाए, अला प्लस हिम से बनाए। अला माने पर, और हिम माने उन सब पर। और यहाँ पर देखिए कि अनअमता क्या है, ये पास्ट, पास्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, पास्ट का लफ्ज इस्तेमाल क्यों हुआ है। पास्ट में गारंटी होती है, ठीक है, प्रेजेंट में गारंटी नहीं होती, पास्ट में 100% गारंटी होती है। कि अब मान ले कि एक कोई बच्चा है और वो स्कूल में है, और एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएट हो चुका है, तो अब जो है, जो स्कूल में है वो कंफ्यूज है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे कौन सा करियर चूज करना है ना, और किस पोस्ट पर जाना है, तो वो किससे पूछेगा। इसके साथ में है, उसकी उसकी क्लास में है, जो उनसे पूछेगा, जो उसका क्लास फेलो है, वो ज्यादा अच्छी राय दे सकते हैं, या जो ग्रेजुएट कर चुका है वो ज्यादा अच्छी राय देंगे। जाहिर सी है ना, जो उस रास्ते से गुजर कर चले गए वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, जाहिर है। और इस रास्ते पर से गुजर कर चला गया वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्लास फेलो ज्यादा अच्छी राय नहीं दे सकता, वो ज्यादा अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी उसी क्लास में है और दूसरा भी उसी क्लास में जो पूछ रहा है। लेकिन इसमें जो, मतलब जो ग्रेजुएट कर चुका, जो उस रास्ते से गुजर चुका, उसमें गारंटी है। अब देखिए कि इनाम किन किन लोगों पर क्या। अब ये भी सोचिए कि किन किन लोगों पर इनाम किया, जैसे कि नबीयीन है, जैसे अल्लाह ताला ने नबियों के बारे में इतना इतना बता रखा है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का भी लक़ब दिया, इनको अपना दोस्त भी कहा, वो अल्लाह ताला के दोस्त भी हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी बहुत तारीफ भी की है, और वो गारंटी है इनकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद उनकी गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला, तो इसलिए उनकी गारंटी है, इनको हमें फॉलो करना है। जैसे साहिबे इकराम हो गए, अबू बकर सिद्दीकी जैसी शख्सियत हो गई, है ना, हजरत उमर जैसी शख्सियत हो गए, हजरत अली हो गए, हजरत उस्मान गनी हो गए। ये इस रास्ते पर इस रास्ते पर चल गए, चलकर गुजर गए, और अल्लाह ताला ने खास तौर पर इनकी गारंटी ली है कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है, इनसे अल्लाह ताला राजी है। पास्ट है, और पास्ट को अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो गारंटी है। क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकते, जान सकते हैं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते, मेरे बारे में ये भी नहीं कह सकते कि मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम सब एक जैसे हैं ना, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकती, है ना। तो किसी के पास बस इतना है कि किसी के पास इल्म ज्यादा है, किसी के पास इल्म कम है, लेकिन अंजाम तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है ना, और किसी को पता भी नहीं हो सकता, है ना। अंजाम तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। तो अंजाम तो हम साथ वालों को नहीं कह सकते कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, कह सकते हैं हम प्रेजेंट में कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो इसलिए पास्ट का अल्फाज, पास्ट का लफ्ज लाया गया है। सुभान अल्लाह, मतलब ये देखिए कि अगर हम प्रेजेंट में हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते, हम सिर्फ पास्ट में ले सकते हैं, जो इस रास्ते पर गुजर चुके। और हम दुनिया में किसी को भी, चाहे वो हमें कितना भी नेक नजर आए, भले ही वो नेक हो, मगर हम इसको 100% फॉलो नहीं कर सकते। ये दूसरे मजहब में होता है। जैसे कि आप देखिए
जैसे कि क्रिश्चियन होते हैं, वो पोप को एकदम फॉलो करते हैं, या हिंदू होते हैं, ठीक है, हमें दूसरों से कुछ सीखना चाहिए, दूसरों की सोहबत लेनी चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत लेनी चाहिए, है ना। अच्छे लोगों की सोहबत लेनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उनका हाथ पकड़ कर मगफिरत हो जाएगी, उनका हाथ चूम कर मगफिरत हो जाएगी, तो ये गलत है, ये हमारे मजहब में नहीं है ना। मतलब हम इनसे एक्सपायर हो सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन 100% एक्सपायर हमें किससे होना है? जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए, या इतने सारे किस्से बताए हैं अल्लाह ताला ने नबियों के, वो हो गए। ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी है, लेकिन फॉलो किसे करना है? पास्ट में जो इस रास्ते पर होकर गुजर गए। अब अल्लाह ताला ने यहाँ क्या कहा कि सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिस पर इनाम किया तूने, उन सब पर इनाम किया, या ये नहीं कहा, क्या कहा? सिरात, अच्छा, ये नहीं देखो, सिर्फ ये कहा कि जिन पर इनाम किया, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि सिरातल सिद्दीकीन, ये सिद्दीकीन का रास्ता, सिरातल नबीयीन, ये नबीन का रास्ता, है ना। या ये भी नहीं कहा कि नबीन का रास्ता, या तो या सिरातल सालिहीन का रास्ता, है ना। क्या कहा? सिरातल लजीना अनअमता, जिस पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा इनाम हो गया, क्योंकि कुरान ने खुद बता दिया किन किन लोगों पर इनाम हो गया। सुहालीन में से हो गए, शहुदा में से हो गए, है ना, नबीयीन में से हो गए, सिद्दीकीन में से हो गए। इन 4 लोगों का जिक्र है कुरान में, इन लोगों पर खास अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो अल्लाह ताला ने क्लियर नहीं करी ये बात, अल्लाह ताला ने छुपा कर रखी। और ये बात छुपा के कैसे रखी? मान ले कि क्लियर नहीं करा कि सुहालीन ये बात, और सुहालीन का रास्ता हो, या शहुदा का रास्ता हो, नबीयीन का रास्ता हो, या सिद्दीकीन रास्ते हो, बल्कि इसको मख्फी रखा, जाहिर करने की जगह पर खफी रखा, यानी इसको छुपाए रखा। किसका खास तौर से नाम नहीं लिया, है ना। किसी का भी खास तौर से नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ताकि ये आयत पढ़कर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए, सवाल आए कि अल्लाह ताला ऐसे कौन से लोग हैं, है ना, कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर आपने इनाम किया। अब हम इनकी तलाश में निकलेंगे, है ना। और जब हम तलाश में निकलेंगे तो हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान में गौर फिक्र करेंगे, और कुरान में ही हमें आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, तुम्हारे जहन में सवाल आने चाहिए कौन से लोग हैं जिन पर इनाम किया। इसलिए खास ये नहीं कहा अनअमत अला इब्राहिम, ये नहीं कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर। अगर अल्लाह ताला ऐसे भी कह देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता, तो देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो सारे मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, यहूदी और मुशरिकीन है मक्का भी काबे की वजह से और मानते हैं, मुस्लिम भी मुसलमान भी सब मानते हैं। सबने अपने अपने इब्राहिम अलग बना रखे थे। अगर अगर क्या कहते हैं, अगर जैसे कि अगर आप बारबील पढ़ेंगे, तो बारबील में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आएगी। वो स्टोरी बिल्कुल अलग होगी कुरान से, इसलिए इनकी अपनी अपनी किताबों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना अलग जिक्र कर रखा है। सबने अपनी अपनी अलग रस्में बना रखी हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ढूंढो, ढूंढो कि हमें सही रास्ता कौन सा है।
सही तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस रास्ते को सही तरीके से फॉलो करते थे, यानी ये नहीं कि अपने के मतलब अपना अपना मनगढ़ंत रास्ता तुम फॉलो करो। तो अगर अल्लाह ताला किसी एक का नाम ले लेते तो सब अपने अपने इब्राहिम को फॉलो करने लगते, है ना, फॉलो करने लग जाते। सबने पहले दीन में गड़बड़ियां पैदा कर दी, सबने दीन में बदलाव शुरू कर दिए, किताबों को अल्लाह ताला की बदल दिया। ठीक है, तो सच जो है वो छुप कर रह जाता है। इसलिए क्या कहा कि ढूंढो, इनाम जो किया उसको ढूंढो। फिर और फिर देखिए कि यहाँ पर क्या है, अल्लजीना, लजीना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि मन, मन की बजाय मन भी जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो इसकी जगह अल्लजीना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मन होता है कोई भी, मन का मतलब होता है कोई भी, लेकिन अल्लजीना, है ना, कि खास, अल्लाजीना का मतलब क्या है, खास वो लोग। अल्लाजीना लगाकर क्या मुराद हो गया, खास, बिल्कुल खास वो लोग, यानी अल्लाह ताला ने खास लोगों का जिक्र कुरान में किया है। आप देखें कि कितने लाखों करोड़ों लाखों अंबिया हैं, अंबिया है ना, लाखों अंबिया में से भी कुछ का जिक्र कुरान में है, और इनका कुछ कुछ में भी इतनी लंबी लंबी जिंदगियां थी। आप देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की जिंदगी थी, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इसी तरह अंबिया को देखिए कितनी लंबी लंबी जिंदगियां रही होंगी, है ना। और इनकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 60 साल। अगर अल्लाह ताला सबकी पूरी पूरी जिंदगियां बता देते, पूरा पूरा मतलब एक एक दिन बता देते, तो ये कुरान कितना मुश्किल हो जाता, है ना। ये मतलब कुरान क्या बन जाता, कुछ और ही बन जाता। ये तो मतलब मतलब ये इसको तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता, कितना लंबा, मतलब कितने सारे पाठ हो जाते। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ खास नबियों का जिक्र करा है इसमें। इसमें भी उनकी जिंदगियों में से कुछ खास फल पल थे, उनका जिक्र करा, जिनसे हमें हिदायत लेनी है। अब हम जो है कुरान में वाकयात पढ़ेंगे, और हमें क्या लगेगा कि ये तो कहानी है और ये स्टोरी है, सुनने में अच्छी है, लेकिन स्टोरी तो है, लेकिन इससे अल्लाह ताला हमें हिदायत क्या देना चाह रहे हैं, हमें उस बात पर फोकस करना है ना। इस बात पर हम इस बात पर हमें रिसर्च करनी है कि हमें सीखना क्या है, अल्लाह ताला ने ये वाकयात क्यों बताए हैं, और अगर ये वाकया दोबारा रिपीट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, दोबारा रिपीटेशन में क्या फर्क है, और दोबारा रिपीट क्यों हुआ है, दोबारा जिक्र क्यों आया है, इसमें अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी में कुछ घंटे, कुछ मिनट हमें बताएं। ठीक है, तो इसलिए अल-लजीना का इस्तेमाल हुआ है। तो सिरातल लजीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन सब पर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, गैरिल मगदूबी, गैर, गैर का मतलब ना के ये सिवाय, सिवाय या मगदूब, मगदूब कहते हैं गदब, गजब, गजब, और इसके रूट लेटर क्या है, गैन, द्वाद, बा। ठीक है, इससे बनाई है गजब, यानी जिन पर गुस्सा हुआ हो। मगदूब किसको कहते हैं, यानी जिस पर गुस्सा हुआ हो, अ, मगदूब जिस पर गुस्सा किया गया हो, इसको मगदूब कहते हैं। और ये क्या और ये क्या आया है कि यहाँ पर क्या आया है, मफूल, मफूल आया है, जिस पर गुस्सा किया गया हो। और ये मफूल भी चलिए हम आगे समझेंगे, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। जब हम ग्रामर में यहाँ तक पहुंचेंगे, जब आप पहचान लेंगे कि ये मफूल क्या है। ये मफूल का मतलब होता है जिस पर काम किया गया हो।
ठीक है। तो जिस पर मगदूब, जिस पर अल्लाह ताला का गुस्सा हो, शुरू में मीम से और आखिर से पहले वाव लगाते हैं, मगदूब, ठीक है। और फिर अलैहिम, अलैहिम क्या है, अला प्लस हिम, हम सब पर, क्या होता है, हम सब पर, अला प्लस हिम। वला, वला में वाव का मतलब और, वाव का मतलब क्या है, और ला का मतलब है नहीं, ठीक है। वाव का मतलब क्या है, और ला का मतलब आता है, कहीं पर भी ला हो तो ला का मतलब क्या आता है, नहीं। तो द्वालीन, जो गुमराह हुए, ना ही जो गुमराह हुए, क्या है यहाँ पे, द्वाल और द्वालीन ये जमा है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगी कि जहां पर या नून या वाव नून आ जाता है वो जमा हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहां पर या नून या वाव नून आ जाता है वो जमा हो जाती है, द्वालीन। इसमें क्या है, या और नून, ठीक है। तो जो गुमराह है, अब देखें कि मखदूब मतलब जिन पर गजब हुआ, जिन पर अल्लाह ताला को शदीद गुस्सा आया हो। और दुआलीन कहते हैं जो कि जिनके पास इल्म ही नहीं है, और वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन ला इल्म है। इन दोनों पर यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला इन दोनों से बचा कर रखे, उनके रास्ते पर हमें चलना ही नहीं है। अब एक हदीस से पता चलता है कि मखदूब जो है वो यहूद है, और द्वालीन जो है वो नसारा है। लेकिन यहाँ पर सारे मखदूब की बात नहीं हो रही है, सारे यहूदी की बात नहीं हो रही है, सारे नसारा की बात नहीं हो रही है। अगर सारे यहूद की बात हो रही होती तो ये सारे ही नसारा की बात हो रही होती, तो अल्लाह ताला डायरेक्ट बता देते। फिर जैसे कि गैरिल यहूदी या गैरिल नसारा, है ना, वलन नसारा, ये भी आ जाता अगर सारे ही यहूदी या सारे ही नसारा की बात होती, ठीक है। तो तो ये भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको छुपा कर रखा, अल्लाह ताला ने जो है वो इसको क्लियर नहीं करा। सारे यहूद के सारे यहूदी से अगर मुराद होती तो अल्लाह ताला क्लियर बता देते, सारे नसारा से अगर मुराद होती तो अल्लाह ताला वो भी क्लियर बता देते। लेकिन नहीं, जो जो कि गुमराह हैं, जिन्होंने जिन्होंने वो हरकतें की हैं, जिसने दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया, उनकी बात पर यहाँ पर, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, सारे यहूदियों की बात नहीं हो रही। सारे यानी जो रसूलुल्लाह के टाइम पर कुछ यहूदी ऐसे भी थे जो ईमान लेकर आ गए थे, काफी सारे ईसाई ऐसे थे जो नजाशी वगैरह वगैरह जो ईमान लेकर आ गए थे, ठीक है। अब देखिए, अब इससे ज्यादा शदीद गुस्सा किस पर है, मगदूब, है ना, यहूदियों पर, जो कौन, जिन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया। अब एक एग्जाम्पल से आप समझे कि अब जैसे मान ले मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम वहीद हो गया और एक का नाम वलीद हो गया, ठीक है। अब मैं जो है मैं वलीद को टॉफी देती हूँ, और इससे कहती हूँ कि बेटा इसको मत खाना जब तक कि मैं ना कहूँ, ये जब तक कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आती तब तक इस टॉफी को आपको नहीं खाना। मैंने किसको बताया, वलीद को बताया। लेकिन जब मैं वापस आती हूँ और देखती हूँ कि वलीद भी खा रहा है और वहीद भी खा रहा है, तो मुझे ज्यादा शदीद गुस्सा किस पर आएगा। जाहिर है, जिसको मैंने हिदायत दी थी, कि जिसको मैं बोलकर गई थी कि वलीद तुम्हें तो मैंने मना किया था, तुम्हें तो मैंने बोलकर गई थी, तुम्हें तो मैंने बताया था, तुम्हारे पास तो मैंने हिदायत भेजी थी, है ना।
और तुमने ही मेरी हिदायत को फॉलो नहीं किया, तुमने ही मेरे आने तक इंतजार नहीं किया, सारी टॉफी खा ली मैंने। अब जैसे मान लो कि एक टीचर है, और एक एग्जाम्पल से समझे कि जैसे एक टीचर है और वो जो है क्लास में आता है और कहता है कि फ्राइडे को एग्जाम है, और फ्राइडे में अभी 5 दिन बाकी हैं, तो ये लो पेपर, क्वेश्चन पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर लो, और ये रहे इनके आंसर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसकी तैयारी करके आनी है और तुम्हें इसका एग्जाम देना है। अब जो है टीचर जब पेपर चेक करता है, एग्जाम हो गया, अब जब पेपर चेक हो गया तो सब लाइन से फेल, तो टीचर को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आएगा? आएगा ना कि मैंने तो तुम्हें बता दिया था, मैंने तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर दे दिया था, क्वेश्चन पेपर छोड़ो, मैंने तो तुम्हें आंसर भी बता दिए थे, सारे के सारे आंसर, यानी तुमने ये हरकत की, यानी तुमने जो है मुझे यानी मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था, तुमने फिर भी पेपर में कुछ नहीं लिखा। अब जरा बताइए कि टीचर को कितना शदीद गुस्सा आएगा। तो टीचर का रिजल्ट खराब कर दिया, जबकि आंसर भी बता दिए थे और सब बता दिया था, कितनी बुरी हालत हो गई गुस्से में। गजब का गुस्सा होगा ना, गजब के मारे। तो वो थे यहूद, यहूद को अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया था। यहूद के पास तो किताबें आ गई थी, उनके पास तो तौरात थी, उन्हें उनके पास तो इतने अंबिया आए थे, बहुत अंबिया आए थे। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक साथ दो दो आ रहे हैं, कभी कभी तीन तीन आ रहे हैं, एक ही मतलब एक ही टाइम में इतने इतने उन्होंने इतने नबी, इतने अंबिया आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो उनका एक तो उन्होंने नबियों का कत्ल करना शुरू कर दिया, कुछ का कत्ल करा, कुछ को माना, कुछ को नहीं माना, किताबों को बदल दिया, पीठ के पीछे फेंकना यानी बदल देना, पीठ के पीछे फेंकना यानी बदल देना, इग्नोर करना। और जो कुरान था उनका सिर्फ और सिर्फ आलिम लोगों तक रह गया था। जैसे आज के हमारे आलिम कहते हैं कि नहीं नहीं, कुरान तो इतना मुश्किल है कि हर कोई नहीं समझ सकता, इसको तो तुम सिर्फ अरबी अरबी पढ़ो, इसकी तुम्हें, ठीक है, इसकी इसकी तुम्हें ट्रांसलेशन समझने की जरूरत नहीं है, इसकी तो तुम इसको सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही। तो तो ऐसे ही बनी इसराइल करते थे, बनी इसराइल जो है वो छुपाते थे, सिर्फ उनके उलमाओं के पास रह गया था ये कुरान। और फिर जो कोई उनसे मसले मसाइल पूछते थे, वो इनके अकॉर्डिंग मसले मसाइल बताते थे, सामने वाले को खुश करने के लिए मसले मसाइल बताते थे। वो अल्लाह ताला का शदीद गुस्सा किस पर है? मखदूब। अब ये देखिए कि ये जो है मखदूब, वो मफूल का इस्तेमाल किया गया है, यानी मैं ये कहूं कि इस लड़के को मारा गया। अब मुझे क्या पता कि किसको मारा, किसको मारा, दो ने मारा या तीन में मारा, है ना, या कितने लोगों ने मिलकर मारा, कोई बात क्लियर नहीं है, बस ये पता है कि हाँ भैया ये तो मारा गया। अब इसी तरह जैसे कह दिया मखदूब अलैहिम, जिन पर गुस्सा किया गया, मतलब दो राय हो सकती है किसका गुस्सा, अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का भी गुस्सा हो सकता है, फरिश्तों का भी गुस्सा हो सकता है ना, फरिश्तों की फरिश्तों का भी गजब हो सकता है। तो तो अहले ईमान का भी गुस्सा हो सकता है, सबका गुस्सा हो सकता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर इतना शदीद गुस्सा है कि अल्लाह ताला ने इनका जिक्र भी अपने साथ नहीं किया, और यानी अपना जिक्र भी अल्लाह ताला ने इनके साथ नहीं किया, इतना शदीद गुस्सा है, तो इसलिए गैरिल मगदूबी ना कि गजब हुआ उन पर। चलिए मैं दुआ पढ़ देती हूँ, टाइम बहुत ओवर हो गया है, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी फिर मैं दुआ पढ़ देती हूँ, जिसको लीव करना है वो लीव कर लीजिएगा, जिसको कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए, ठीक है।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سمعنا واتانا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. تو اللہ